नमस्कार। 706 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कुछ नियमों को भारतीय संसद में लागू करवाना चाहती है, जिसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट कहते हैं। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, constitutional validity on income work, educational certificate, fundamental right, educational certificate, per day fiscal credit wage, fundamental right, direct link to ministry and budget, educational certificate, capital value, fundamental right, direct ministry budget connection, per month fiscal credit salary, fundamental right, 4 slab pension 1832 46 58 year, fundamental right, administration through the attachment of the organized self-employment ministry and budget. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit. There should be 3 budget system: annual budget, 1 unit ministry, railway budget, 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. It is especially for the educational certificate and constitutional validity on income work. By this, per day fiscal credit wage, per month fiscal credit salary comes. And there should be employment equilibrium point based on the aggregate demand is equal to aggregate supply, and I is equal to S, investment is equal to saving concept according to the market. Presently it is 40,000 employment equilibrium point. Above that, only 30% of the total population is working. Though 95 to 98% economy is moving towards capitalist economy, and rest 70% is below poverty, and in that below poverty line people are also there, illiterate also there. So by this organized self-employment ministry, each and everyone gets per day fiscal credit wage. Money is arranged in same way as we are arranging for the annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and 28 state annual budget, and 8 union territory annual budget. For this, Labour Party of India with fist of the hand has been made. Labour Party of India has arranged this law for making in Parliament. Direct ministry and direct budget connection is the grassroots. By this, income and work get organized. What work we are doing, मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसी में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आ जाता है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसके लिए फिस्ट ऑफ द हैंड सिंबल के साथ काम कर रही है। इसके तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जिसके तहत अगर हम 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री या 10 पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट प्राप्त कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के ज़रिए, जिसकी के ज़रिए व्यक्ति जो है 40,000 प्रति माह से ऊपर चला जाता है। और यह समय 20 साल लगता है, क्योंकि टाइमली सेशन होते हैं और MA करने के बाद 9 डिग्री और MA की लेनी पड़ती है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निवास है और सभी को इसमें रोजगार आ जाता है और 40,000 से ऊपर जाने का रास्ता बन जाता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए है कि 40 साल का सर्विस होना चाहिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, और उसके तहत जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हर 2 किलोमीटर पर ऑफिस है और इसके ब्रांचेज में 365 सदस्य होते हैं, और 365 सदस्य बढ़ने के बाद दूसरा ब्रांच खोल लिया जाता है। और उसके अलावा ब्रांच में जो है 7 दिन का काम लिया जाता है। वो 7 दिन का काम लगभग कम समय ही कंप्लीट हो जाता है। बाकी 23 दिन आदमी खुद अपना काम कर सकता है या फिर किसी के यहाँ नौकरी कर सकता है, किसी कंपनी में नौकरी कर सकता है और जीवन स्थिर हो जाता है, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट और रोजगार स्थिर हो जाता है। और स्थिरता के साथ साथ जो है वह अपना डबल सैलरी सिस्टम के ज़रिए पैसा कमा सकता है। अब इसमें जो है अगर वो 40 साल का सर्विस करता है
इलिटरेट कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडी और इनकम वर्ग के लोग, तो अगर सारे ग्रीन शीट है, सब काम ढंग से हुआ है, तो उसको 40,000 से ऊपर जाने का मान्यता मिल जाता है इसमें। इसके अलावा यूनियन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया OSMBI बनाया गया है, जिसके तहत 1360 स्क्वायर फीट लैंड खेती करने के लिए देने पर 1500 रुपया सालाना उस पर मिलता है, और उसको फिर आगे बढ़ाया जाता है। एक ऑर्गेनाइज सेटअप है, कभी भी जॉब की ज़रूरत है 18 वर्ष के लोग, 32 वर्ष के लोग, 46 वर्ष के लोग, 58 वर्ष के लोग, और फिर जो है 72 वर्ष के लोग, सभी को इसमें जॉब सेटिंग हो जाती है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसी को जॉब मान लिया जाता है। इस तरह से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसको कानून बनाने में लगी हुई है, साथ दें इसका। इसके अलावा जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एनुअल फेस्टिवल 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर मनाया जाता है। इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन हैं: कैलाश धाम शिव पार्वती राष्ट्रपति, बैकुंठ धाम विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण धाम दौलत राष्ट्रपति भवन, धाम ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत लॉ एजुकेशन और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हमने प्राप्त किए हैं, और ISBN सर्टिफिकेट, ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402 और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। तो इन सब सर्टिफिकेट को लेकर राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति, जिसमें ट्रूथ ओनली टर्म्स का आदिशक्ति जगदम्बा खंड और दुर्गा सुदेवी भागवत का दस्तावेज, इन सब को लेकर आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन नंबर 5 और प्रत्येक स्वयं वर्ष को भगवान भगवती कहते हैं। और जो है राष्ट्रपति भवन नंबर 6 15 अगस्त 1947 से जो भी कानून बने हैं उसके तहत जो भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ने बनाया है 31 अगस्त 2001 से, उन सबको लेकर इसको जो है राष्ट्रपति भवन नंबर 6 कहा जाता है। इसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस कंपनी है, जिसके तहत ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है। ट्रूथ ओनली टर्म्स की कीमत है 401 रुपये, जिसको आप पार्सल के ज़रिए खरीद सकते हैं। मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com के जरिए संपर्क करके मैसेज भेजकर इसको प्राप्त कर सकते हैं पार्सल के जरिए। अगर आप ये खरीदते हैं तो भारतीय संसद में इसका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कानून बनाना तय है, क्योंकि यह जीवन की आवश्यकताओं पर निर्भर है और रोजगार में हर प्रकार के लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हों, जो भी मिडिल क्लास है उसके तहत आ जाता है। रिच भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि स्थिर जीवन को ये प्रवर्तक है, अमितेश्वरवाद इसे कहते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ब्लॉग है jhamitkumar77.blogspot.com, ट्विटर अकाउंट twitter@680222607 और यूट्यूब पर चैनल है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट OSMBI सेशन 1 से लेकर 100 इंग्लिश में, 101 से लेकर 200 हिंदी में, 201 से लेकर 225 मैथिली में, 226 से लेकर 300 इंग्लिश में, 301 से लेकर 400 हिंदी में, 401 से लेकर 500 मैथिली में, 501 से लेकर 700 इंग्लिश में और 701 से लेकर 900 हिंदी में। यह 706 सेशन है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की साल में आरती प्रत्येक दिन की जाती है। इसका हेड ऑफिस शारदापुर लॉनर रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर है 6397360717। कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। पहला राष्ट्रपति भवन शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 12 बनारसी सारी 12 दत्ती 175 करोड़ शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण प्राण प्रतिष्ठा 12 बनारसी सारी 12 दत्ती 175 करोड़ मंदिर दस्तावेज पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट ट्रूथ ओनली टर्म्स ISBN सर्टिफिकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा अखंड। उसके बाद फिर दुर्गा सुदेवी भागवत और जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर हैं प्राण प्रतिष्ठा 175 करोड़ आदि मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक स्वर्ण वर्ष को भगवान भगवती। इसके तहत जितने भी
वर्षकृत हैं और जितने भी विधियाँ हैं पूजे करने की देवी देवता हैं उन सब के वर्षकृत को लेकर प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती दूधांजलि राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में 15 अगस्त 1947 से जितने भी कानून बने हैं और उनको लेकर और 31 अगस्त 2001 से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट द्वारा जितने भी कानून की आवश्यकता पड़ी है उन सबको बनाकर इन सब को लेकर हिंदू गवर्नमेंट जो डैमेज प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती दूधांजलि। इसके अलावा इसका ध्वज भी है उजला कपड़ा पर 12 सिंबल है, 6 सिंबल हिंदू राष्ट्रपति वन के और 6 अल्पसंख्यक राष्ट्रपति वन के। पहला है त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती वेलफेयर बाबा के दृष्टिगोचर है। दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड विष्णु दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो है वह आदिशक्ति जगदम्बा वीटो फैमिली वीटो हस्बैंड का दृष्टिगोचर है। किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि के बाद अल्पसंख्यक के राष्ट्रपति भवन के सिंबल है जो कि माइनॉरिटी कमीशन द्वारा ही दिए गए हैं। इन 6 राष्ट्रपति भवन माइनॉरिटी के सिंबल को पुष्पांजलि और हिंदू रिलीजन के सिंबल को पुष्पांजलि। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी घर घर आए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस में बन जाए क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट फ्री होने के कारण सरकार कुछ कर नहीं पाती है और जो है उसके लिए कंपटीशन है बनाती है सरकार, लेकिन कंपटीशन के ज़रिए 40,000 से ऊपर जाने का रास्ता बनता है। आज के डेट में कंपटीशन में 5 से 6% लोगों की बहाली हो पाती है, बाकी जो है सो इसी तरह से इधर उधर काम करके ही निकालते हैं, जिसके कारण आर्थिक संकट पूरे जीवन में बना रहता है। इस आर्थिक संकट का निवारण सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अधिनियम के जरिए किया जाता है क्योंकि यह जड़ मूल से ही खत्म करता है। 0 डेज से 18 वर्ष में कोई अगर गरीब है या विपत्ति आ गई है तो वो सीधा मंत्रालय संपर्क में जा सकता है। इसके तहत 6 माता पिता दस्तावेजी रूप से मिलते हैं जो कि प्राण प्रतिष्ठा रूप में मंत्रालय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय द्वारा इसको जो है मेंटेन किया जाता है और उसके बाद इसके तहत जो है स्वतंत्रता रहती है। अगर कोई डिस्प्यूट होने पर लोगों को पहले कहना पड़ता है कि वह शिव भक्त है या विष्णु भक्त है, नहीं तो 16.66% फिजिकल क्रेडिट सैलरी के काटे जाते हैं और साथ साथ जो है कोर्ट मार्शल रेंज पर इसको लिया जाता है। इसलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक स्थिर कानून को प्रवर्तक करता है। 140 करोड़ आबादी है और ऐसा नहीं है अगर 10, 15, 20, 25 लोग भी इसके साथ हो जाते हैं तो यह इस चीज़ को सिद्ध करने में कामयाब हो जाएगा कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कितना ज़्यादा महत्व है और इसको आधार मानकर जो है व्यवस्थित जीवन बनाया जा सकता है और पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस बनाया जाता है। इसी विचारधारा के साथ अमितेश्वरवाद 31 अगस्त 2001 से आगे बढ़ता जा रहा है। जितने लोग इसके साथ होते जा रहे हैं वो तो पक्के हो गए और जो इससे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। जब तक कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रेस सभी ऑफिस में इस बात की चर्चा नहीं की जाएगी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जो अमित कुमार झा प्रमोट कर रहे हैं पर डे फिजिकल क्रेडिट के लिए क्यों ना हम सपोर्ट करें, तब तक भारतीय संसद इस चीज़ को नहीं सुनेगा क्योंकि भारतीय संसद अपने विचारधारा से है। हम जनतंत्र में जो जनता की ज़रूरत है उसी चीज़ के कानून की मुखालियत करते हैं और इसके लिए आप लोगों का साथ परम आवश्यक है। और आप लोग जब इस बात को समझ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क वह भगवान भगवती के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है जिसके ज़रिए जो भी काम कर रहे हैं उसको एक पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज में लिया जाता है। फिजिकल क्रेडिट वेज जो वेज प्रिवलेंट है, जो लोग काम करना चाहते हैं उनका एक फिक्स रेट है बाहर में, उस पर एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलती है। इसको सरकार के ज़रिए कानून के ज़रिए एक बांधा गया है एक रेट में। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को इस रेट पर उतना देना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को उतना ही फ्रीडम है क्योंकि नाम ही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि सभी अपने रोजगार करते रहे। होता क्या है कि बीच में छूट जाते हैं और वो बीच वाले जो हैं लगभग 70% में से 60% लोग हैं और उसके बाद जो है आर्थिक समस्या का कोई मदद नहीं कर सकता।
इस चीज़ को समझकर और इसको अपनाए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को अधिनियम को भारतीय संसद और विधानसभा में पारित करें। इसके साथ धन्यवाद।